So I have explained already what are all the list of operator and what is their associativity and what is their precedence. Important thing, right? The highest precedence is given to parenthesis. If you want to perform any operation uh, uh, at the first, then you have to use arithmetic operator. Except that we also learn so many other operators comparison we will learn later on, but these basic information I have just given, the what is the comparison operator, what a comparison operator does, and what is the logical operator. Main difference between these two is comparison operator compare two value, but logical operator compare two boolean value, you can say true and false, right? Assignment operator, you can say you can just to assign the value, and there are some shorthand representation of combination of arithmetic and assignment operator. I will let you know. Then what are the special operator like ternary operator, type operator, instance operator, rest operator, type operator we learned. Then this is arithmetic operator. Then operator precedence I show you. Then what are the different type of data type? All type of numbers, जैसे बताया था मैंने, all type of numbers like negative, positive, floating point number, everything is come inside, fall inside numbers type. String, whichever you have store inside single quote, double quote, or backtick, it's considered string. Boolean means always true or false value. Whenever you consider or you get any value true or false, then it is Boolean type of value. Object and array. Escape character, array, object, the basic of functions, right? How return function, whenever you write return function, as I explained, after the return statement, no statement will be executed inside this function body. ये भी explain किया था. What is the difference between undefined null and NN? It is also type of operator. So इसके अंदर कोई doubt है? No, sir. Okay. No, sir. So अभी हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे एरिथमेटिक ऑपरेशन का प्रेसिडेंस कैसा है. So what are the different arithmetic operator like plus, minus, multiplication, division, modulus, and to the power. Like double is called to the power 2, right? So what is the precedence of this arithmetic operation and what is its associativity, right? So these are arithmetic operation, multiplication, division, modulus. They have same precedence and their associativity left to right. Associativity means it executes left to right. Suppose you have written associativity, I will explain. Then addition and subtraction has lower priority. Then this सबसे ज़्यादा priority जितना भी arithmetic operation है उसके to the power. If there is double star is there, then it will be performed first. Then multiplication, division, and modulus. Then plus and minus. Okay. Every operator has its associativity from left to right. What does it mean, associativity? Means if you are using same type of operator like multiplication, division, and multiple time of multiplication, then their execution will be always left to right, right? जैसे मैं for example इसको मैं comment कर देता हूँ, right? So यहाँ पे मैंने let me write one results equal to, जैसे मैंने लिखता हूँ यहाँ पे 2 star 3 division divided by 2, okay, then star 10. So इसमें क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली पैरेंथिस ले लेता है. इसका मतलब ये एग्जीक्यूशन प्रेसिडेंस क्लियर कर देता है. इसमें सपोज ये पैरेंथिस नहीं डालूंगा मैं, तो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस कैसे रहेगा इसका, ये एडिटर पैरेंथिस ऐड कर देता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो इतना स्मार्ट है. तो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर यूज किया, आई हैव यूज्ड स्टार डिवीजन. Okay, if you want to use modulus here, you can do percentage, right? So जितना भी मैं यहाँ पे यूज किया ऑपरेटर, एवरी ऑपरेटर हैज सेम प्रेसिडेंस, राइट? तो इसमें क्या लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होगा. तो पहले जो ये दो ऑपरेंड है, ये पहले एग्जीक्यूट होगा,
इसके बाद इसका जो रिजल्ट होगा फिर ये इसके ऊपर ये डिवीजन ऑपरेट होगा, एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस 3 ऑपरेंड विथ देयर ऑपरेटर, whatever the result we get, it will be executed with modulus 10, राइट। इसको मैं सेव करता हूँ तो देखो ये ऑटोमेटिक जैसे जैसे एग्जीक्यूशन होता है उसके हिसाब से पैरेंथेसिस ऐड कर लेता है, बट अब चेंज भी कर सकते हैं प्रेसिडेंस, राइट। तो इसमें इसी सीक्वेंस में ऑपरेट, तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट मतलब इट्स एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफ ऑल द प्रेसिडेंस आर सेम इन एन एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, then it will start from left to execution start from left to right, right। जैसे मैं यहाँ पे एक प्लस डालता हूँ, राइट, एंड यहाँ पे डालता हूँ टू दी पावर, यहाँ पे ज्यादा नहीं करता हूँ, टू करता हूँ, तो ये कौन सा पहले ऑपरेटर ऑपरेट होगा, पहले टू दी पावर ऑपरेट होगा, राइट। तो टू दी पावर ऑपरेटर किसके ऊपर होना चाहिए, ये टू के ऊपर ये ऑपरेट होना चाहिए, राइट। बट ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली ये तीनों को पहले ले लेता है, इसके बाद ये टू दी पावर करता है, क्यों, मुझे नहीं चाहिए सर, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्लस रखता हूँ, ओके। अब कौन सा इसका आउटपुट क्या होगा, कोई बता सकता है, इसमें सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका है, टू दी पावर, सो इट दिस operator will execute, so what is the operand for this operator, 2 and 2, so 2 to the power 2 equal to 4, then which operator precedence is high, star, then multiplication, then 4 into 3 equal to 12 plus 2, so what will be the output, 14, let's see 14, right। सपोज मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस ऐड कर दूंगा, यहाँ पर पैरेंथेसिस ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल, सो क्या होगा, पहले ये पैरेंथेसिस के अंदर जो भी ऑपरेशन है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो आउटपुट क्या होगा, पहले 2 + 3 = 5, इसके बाद 2 + 2 to the power 2 is 4, then 5 into 4 = 20, clear, it is visible clearly। सो इस तरीके से बहुत सारे ऑपरेशन होता है, बस इसका प्रेसिडेंस हम अरिथमेटिक ऑपरेशन का आपको पता चल गया, हाईएस्ट प्रेसिडेंस इज टू द पावर, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस, देन प्लस माइनस, राइट। बट यू कैन change the precedence of execution using parenthesis, okay। But what is how associativity works, if you are using the same precedence operator, then it will start executing from left to right, okay। For example, I am using here something like plus 2, so what would be output, अभी इसका आउटपुट 20 था, तो यहाँ पे 20 के बाद 2 अपेंड हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, राइट। बट इफ आई एम यूजिंग स्टार ओवर हियर, देन व्हाट विल हैपन, द रिजल्ट विल बी समथिंग एल्स, एक्चुअल अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, बट यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैंने सीके लिख दिया या कोई स्ट्रिंग लिख दिया, देन व्हाट विल बी द आउटपुट, कोई बता सकता है, सर NN, because any inside any arithmetic operation, if you using string, then it is an absurd operation, because it JavaScript want to convey you that the operand you are using is not a number. So if you want to do any arithmetic operation with not a number, then output will be not a number, okay। What is the data type of not a number, number, clear, okay। So this type of arithmetic operation you can use in your what you can say application or programming। बट ये नंबर सपोज आपको ऐसे भी आ सकता है, लेटर में एडवांस सेक्शन में मैं बताऊंगा कि मुझे ऐसे प्रिंट नहीं करना, जैसे प्राइस कैसे प्रिंट करते हैं हम, 0.00 0.50 ऐसे होता है ना, तो इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे,
पार्स इंटीजर जैसे में नहीं करते थे, ऐसे करेंगे पार्स फ्लॉट। पार्स प्लॉट के अंदर अपना रिजल्ट पास कर देंगे, तो व्हाट इट विल शो द एग्जैक्ट वैल्यू 20, सो एग्जैक्ट वैल्यू इज 20, राइट। बट इसमें आपको सपोज कोई जस्ट अ मिनट, राइट। सपोज इसको अपने को नहीं, ऐसा नहीं कि 0.2 या ऐसा कुछ मल्टीप्लीकेशन मैंने किया यहाँ पे, सपोज जिसका रिजल्ट मुझे ये क्या मिलता है, फ्लोटिंग पॉइंट। जैसे 2 + 5 divided by 3, of course it is not an whole number, right? It is a floating point. So look at it, the point will be visible over here. जैसे मैं 5 फ्लोट निकाल दूंगा यहाँ से, then what happen? Still it is displaying. Look, right? बट आपको एक चीज यूज करना है, जैसे आपको डिजिट सॉरी पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट सपोज आपको कंट्रोल करना है, तो आपको और एक चीज यूज करना है जिसका नाम है 2 fixed 2। यही था, सॉरी जाओ, व्हाट इज ऑपरेटर 2 fixed in JavaScript, what is the function name? 2 fixed, ओके। सो 2 fixed के अंदर जो भी वैल्यू पास करोगे वो इतना ही दिखाएगा आपको। 2 डिजिट यहाँ पे 2 रखा, तो डेसिमल के बाद ओनली 2 डिजिट, उसके बाद राउंड अप कर लिया उसने। जैसे 0.6666 था, तो मोर देन 6 इज इट इज कंसिडर एज 7। डिड यू सी? आपको सपोज यहाँ पे करना है कि 10, तो 10 डिजिट तक ये दिखाएगा, 4 ये 5 5 10, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मैंने कर दिया कि 50 30, नंबर के ऊपर ज्यादा बताऊंगा मैं बाद में। देखो दिख रहा है आपको, तो यहां तक वो दिखा रहा है। अभी मैं ज्यादा करूंगा, 100 करूंगा, तो भी दिखा रहा है, दिख रहा है आपको। बट ये देखो एक लिमिट के बाद ये क्या किया, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेट मेक एक लिमिट के बाद इसके बाद 0 0 0 0 अपेंड कर दिया, राइट। अभी मैं यहाँ पे सपोज ठीक है, ये इसका डिवीजन के बाद ऑड नंबर निकलता है, इसलिए ऐसा सपोज होल नंबर निकल रहा है। जैसे 2 + 5 3, ये 3 + 3 करा 6 डिवाइडेड बाई 3, तो इक्वल टू 2, आउटपुट इज 2, राइट। तो यहाँ पे मैं सपोज डेसिमल 2 तक दिखाना चाहता हूँ, तो ये तो होल नंबर आया 2, 3 + 3 = 6 डिवाइडेड बाई 3 = 2, राइट। तो ये तो 2 आएगा, अभी डेसिमल के बाद कोई नंबर है ही नहीं, तो व्हाट विल हैपन, इट विल ऐड टू 2.00। सो बहुत सारे प्लेस में हमको ऐसे डिस्प्ले करना होता है, राइट। कि पॉइंट के बाद अपने को जैसे प्राइस डिस्प्ले होता है ना, कोई भी ई कॉमर्स साइट में देखा होगा आपने, 0.50 0.52 ऐसे 2 डिजिट तक, या सपोज होल नंबर है तो 0.00 भी दिखानी होती है, होता है कि नहीं होता। तो वहां पे 2 फिक्स्ड करके मेथड यूज होता है, बट 2 फिक्स्ड मेथड हमेशा नंबर के ऊपर होता है, स्ट्रिंग के ऊपर नहीं। सपोज मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग कर दिया इसको, राइट। रिजल्ट में फॉर एग्जांपल मैंने CK स्टोर किया, ठीक है। रिजल्ट में मैंने क्या स्टोर किया, CK। उसको उसके 2 फिक्स 2 करने जाऊंगा तो एरर दिखाएगा, इनवैलिड एक्सपेक्टेशन टोकन, क्योंकि ये, रुक जाओ इसको डिलीट कर दो। ये क्या दिखता है, 2 फिक्स इज नॉट ए फंक्शन, बिकॉज 2 फिक्स 2 किसके ऊपर चलता है, 2 फिक्स 2 इज ऑपरेट ओनली ऑन नंबर, ठीक है। सपोज ये 2 है, बट ये स्ट्रिंग के अंदर है, बट इज देयर एनी वे दैट वी कैन कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग टू नंबर? कौन सा मेथड है इसको करने के लिए? सर पार्सेंट। पार्स इंटीजर, राइट।
और पार्स प्लॉट भी यूज कर सकते हैं, पार्स प्लॉट भी यूज कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, नंबर बन गया, राइट। इसके बाद टू फिक्स टू यूज करेंगे। okay? Sir, S is missing results. अरे देखो 2.00 आया, ठीक है। अभी इसको पार्स फ्लोट या पार्स इंटीजर करेंगे तो वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया किस में, नंबर में, है ना। क्लियर। अभी और एक चीज दिखाता हूँ मैं, ये समझ में नहीं आएगा तो बोलना मेरे को। अभी इसमें जैसे ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2.34, तो इट इज ए डेसिमल नंबर, बट यहाँ पे मैंने पार्स प्लॉट करूंगा तो काम करेगा प्रॉपर्ली 2.34, राइट। अभी यहाँ पे मैंने क्या करूंगा, टू पार्स इंटीजर करूंगा। इंटीजर मतलब प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव होल नंबर। तो ये देखो 2.00 प्रिंट कर रहा है इंस्टेड ऑफ 2.34। व्हाई? बिकॉज आप जब पार्स इंटीजर करोगे इट विल ओमिट योर डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो ये आउटपुट, यहाँ तक क्या आउटपुट मिलेगा मुझे पार्स इंटीजर का, क्या आउटपुट मिलेगा ना, खाली 2, क्योंकि इंटीजर क्या करेगा, आपकी जो डेसिमल नंबर को ओमिट कर देगा। तो यहाँ पे खाली 2 मिला, फिर मैं 2 फिक्स 2 फंक्शन अप्लाई करता हूँ उसके ऊपर, तो वो क्या करेगा 0.00 ऐड करेगा, क्योंकि ये होल नंबर के बाद भी हम 2 फिक्स 2 में कुछ डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो वो 00 ऑटोमेटिक प्रिंट करता है, राइट। So parse integer, 2 fixed to parse float, then arithmetic operation. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. These are very basic, so don't worry about it. It will be pretty clear, I hope. So इसमें कोई doubt किसी का? No. Okay. So today, from now onwards, let's discuss the scope and hoisting. Scope is a very interesting chapter because ये very confusing भी होता है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सी प्लस प्लस में आप लोग क्या क्या पढ़ के आए हो, सी प्लस प्लस और जावा ये पढ़ के, सी प्लस प्लस तो सी और सी प्लस प्लस तो 100% जो भी इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे ये दोनों पढ़े ही होंगे, राइट। Yes, sir. C++ and Yes, basic sir. Python. C, C++ and Java also. राइट। सो ये तीनों सी प्लस प्लस के ऊपर जावा 100% मतलब 80% तो मैच होता है, राइट। खाली सिंटेक्स अलग है और उसका नेम स्पेस एक्स्ट्रा आ जाता है जो इसमें नहीं है। बाकी जो प्रोग्रामिंग की ऊप्स कॉन्सेप्ट जो है पूरा मैच होता है, सिंटेक्स चेंज होता है 100%, राइट। सी में भी सी एंड सी प्लस प्लस के बीच भी वही है, बट जावास्क्रिप्ट की स्कोप है ना वो थोड़ा अलग है और बिहेव भी करता है अलग टाइप का इन डिफरेंट सिनेरियो, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद स्कोप। तो स्कोप के बारे में कोई आइडिया है किसी को, व्हाट इज स्कोप? स्कोप किसको बोलते हैं? ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप। हाँ, स्कोप किसको बोलते ना, कोई कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम रखते हैं तो उसी वो हो जाता है उसका स्कोप। कोई एक बंच के अंदर कोई फंक्शन की बड़ी के अंदर रखते हैं तो भी वो हो जाता है वो फंक्शनल स्कोप। फंक्शन के अंदर है तो उसके अंदर उसका स्कोप होता है। कोई नॉर्मल अपने कर्ली ब्रेसेस डालते हैं तो भी वो एक स्कोप होता है। ईफ के अंदर है तो उसका भी ब्लॉक स्कोप बोलते हैं उसको, राइट। तो ये लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, बट लोकल स्कोप अगेन डिवाइडेड इनटू फंक्शनल एंड ऑल दिस स्टफ। Okay, so what is scope then? Scope is scope and hoisting. पहले स्कोप सीखेंगे तो उसके बाद वो होस्टिंग उसके ऊपर कैसे काम करता है, स्कोप के बाहर जाके वो सीखेंगे। So what is scope? Scope is a scope in JavaScript refers to the accessibility or visibility of variables, that is which part
of a programs have access to variable or where the variable is visible. ये डिसाइड करता है, स्कोप डिसाइड करता है कि कौन सी वेरिएबल कहाँ पे विजिबल होगा और एक्सेसिबल होगा, राइट? ये स्कोप डिसाइड करता है. आपको डिस्ट्रैक्शन आ रहा है क्या गाइस? यस सर. चलेगा इसमें या यस सर, इट्स ओके सर, मतलब Okay. थोड़ा सा आ रहा आ रही है है, आवाज, हाँ, ओके थोड़ा ओके बहुत थोड़ा सा है सर, no problem. ओके ओके. सो क्लियर? सो एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड स्कोप. किसके अंदर ये एक्सेस हो सकता है या विजिबल होगा ये वेरिएबल, उसके हिसाब से उसको स्कोप बोलते हैं, राइट? तो स्कोप कितने टाइप का है? डिफरेंट टाइप ऑफ स्कोप. सो मेनली इट इज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कोप. सो नंबर वन इज कॉल्ड ग्लोबल स्कोप. जो कोई भी हम डिफाइन करते हैं ना, यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ये एग्जांपल आपको दिख रहा होगा. You can see this example. So I have defined one variable with var keyword because there are different type let or var we can or const we can use to define JavaScript variable. So right now yeah, I'm using var to declaring and initializing one variable called greetings. इसमें hello world मैंने initialize किया. And I also define one function which is using function as a statement, like function keyword which is called function as a statement. And I am calling that function also. तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया and I define one function, both of these are defined in global scope. ये फंक्शन भी ग्लोबल स्कोप में है और ये वेरिएबल भी ग्लोबल स्कोप. सो ब्राउजर में ग्लोबल स्कोप मतलब किसके अंदर होगा ये ग्लोबल स्कोप? सो व्हाट इज, सो जब भी ग्लोबल स्कोप कोई डिफाइन करते हैं हम, तो ग्लोबल स्कोप मतलब इट विल बी एक्सेसिबल इनसाइड विंडो ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द ग्लोबल ऑब्जेक्ट इन ब्राउजर? विंडो. ओके, सो व्हाट इज विंडो? सो लेट मी कंसोल यू द विंडो ऑब्जेक्ट. इसके अंदर मैं विंडो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ. ये इट इज ए ग्लोबल ऑब्जेक्ट इनसाइड ब्राउजर बट यू कैन नॉट एक्सेस इट इनसाइड सर्वर. आपको ये दिख रहा है विंडो ऑब्जेक्ट? इसमें कितने सारे, कोई भी ऑब्जेक्ट का कितना प्रॉपर्टीज बहुत सारे होता है, राइट? जैसे अलर्ट है, अलर्ट ब्लर, ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, विंडोज के अंदर. और आपका जो भी फंक्शंस वगैरह डिफाइन होता है ये इसके अंदर ही होता है. तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है और कुछ भी हम डिफाइन करते हैं अगेन इसी के अंदर ही आ जाता है, राइट? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब जावास्क्रिप्ट कोई फंक्शन क्या होता है कि परमानेंट लाइब्रेरी में इसमें स्टोर हो जाता है, राइट? बट ये भी क्या होता है, अब जब वेरिएबल भी डिफाइन करते हो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट में जाता है तो हमको फाइंड करने में जावास्क्रिप्ट को टाइम लगता है. तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन है बिट स्लो एट कंपैरिजन टू लोकल स्कोप, राइट? तो ये विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आपने जो भी मैंने बोला आपको कि ग्रीटिंग्स एज वेल एज फंक्शन द ग्रीट इट बोथ आर डिफाइनिंग इन विंडो ऑब्जेक्ट. सो हाउ कैन, जो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चीज होता है तो हम डॉट कन्वेंशन से एक्सेस कर सकते हैं. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डॉट ग्रीटिंग विंडो डॉट ग्रीटिंग. इट शुड वर्क. लुक इट विल वर्क, इट वर्क्स, राइट? सो ये 2 बार क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि मैं यहाँ पे भी फंक्शन भी कॉल कर रहा हूँ, तो फंक्शन के अंदर भी कंसोल रखा है, इसमें भी रखा हो. तो एक चीज आपको पता चला कि विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ये डिफाइन होता और ये विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर थ्रो भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ. तो कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट में बेसिक बताया था, विंडो डॉट ये ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, राइट? बट मैं ये नहीं लिखूंगा ना तो भी बाय डिफॉल्ट ब्राउजर समझ जाता है. इट इज, देखो, स्टिल इट इज वर्किंग. सो इफ आई एम नॉट राइटिंग और रेफरिंग टू विंडो ऑब्जेक्ट, स्टिल ब्राउजर विल अंडरस्टैंड दैट वेयर आई एम कॉलिंग दिस वेरिएबल फ्रॉम ग्लोबल ऑब्जेक्ट, राइट? ऐसा नहीं है, समझ जाता है, बट वो उसका जो नेस्टिंग होता है ना, मीन्स व्हाट इट विल डू, मैं स्कोप के बाद बताऊंगा. ये क्या करता है, पहले लोकल स्कोप में ढूंढता है, फिर उसके पेरेंट स्कोप में ढूंढता है, फिर उसके बाद कहीं नहीं मिलता तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के स्कोप में जाके ढूंढता है वो वेरिएबल. फिर कहीं भी नहीं मिलता है तो इट विल थ्रो एन एरर, इट इज अनडिफाइंड और माइट बी नॉट डिफाइंड. क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट मींस ब्राउजर में ये कहाँ पे होता है,
विंडो में होता है। अभी और एक चीज बताता हूँ, आप सर्वर में करोगे तो क्या दिखेगा इसमें, ये विंडो डॉट ग्रीटिंग्स यहाँ पे लिखा, तो यू कैन सी इट वर्क्स, राइट, इट इज वर्किंग। अब मैं इसको कंसोल में प्रिंट, ये कंसोल में प्रिंट करना चाहता हूँ विथ टर्मिनल, मीन्स ये सर्वर में रन होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं कैसे रन करूंगा, नोड एप डॉट जेएस, सॉरी नोड स्पेस, देखो अभी ये विंडो डॉट ग्रीटिंग क्या लिखा, विंडो इज नॉट डिफाइंड, व्हाई, बिकॉज इन सर्वर विंडो करके कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या होता है, सर्वर में जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ब्राउजर में विंडो, वहां पे यहाँ पे होता है ग्लोबल, क्या होता है ग्लोबल, GLOBAL ऐसा, ठीक है। अब ग्लोबल लिखेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा ब्राउजर में, बिकॉज ब्राउजर में ग्लोबल करके कुछ नहीं है, बट यहाँ पे काम करेगा सर्वर में। दिख रहा है आपको, देखो ये अनडिफाइंड मिला तुमको, बट एरर नहीं मिला, क्योंकि मैं यहाँ डिफाइन नहीं किया मैंने प्रॉपर्ली इन ग्लोबल में। आपको डिफाइन करना होगा तो ही चलेगा। बट एक और एक ऑब्जेक्ट है जो ब्राउजर एंड सर्वर दोनों में चलता है, उसका नाम क्या बताए, ग्लोबल दिस, जो ये दोनों यूज करने से अलावा आप ये यूज कर सकते हो। देखो ये दिख रहा है ग्लोबल दिस, ये दोनों में एक्सेस हो सकता है, दिख रहा है। यहाँ पे भी एरर नहीं दिखा, मिला नहीं, बट एरर नहीं दिखाया इसने, क्योंकि मैं वेयर करके डिस्प्ले कर रहा हूँ इसलिए नहीं हो रहा। यहाँ पे एरर नहीं दिखा है, बट यहाँ पे भी काम कर रहा है, लुक एट इट, क्लियर। सो ग्लोबल दिस क्या करता है, ग्लोबल दिस क्या करता है, इट विल बी एक्सेसिबल global this will be accessible, Yes, sir. browser as well as server, it will not throw an error, means global object is there, all means if you print the global object over here, you can access in server. Look at this, this is the global object, did you see, there are so many properties are available over here, set timeout, queue, built-in methods. And in browser also, if you refresh it, you can see this is referred to window object by default. So जब global this लिखेंगे तो it will work in Node.js programming as well as browser programming, right? So what is global object for browser and server both? Global this. So जब भी मैं global object में कुछ भी define करता हूँ तो by default ये window object के अंदर, browser के लिए हम सीख रहे हैं अभी फिलहाल, don't worry about it. Give me some time. Hello. Okay, so is it clear? Hello. Yes, is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So global scope में कुछ भी define करते हैं तो वो कहाँ पे visible होता है, window object के अंदर। अब फिलहाल ये I'm in meeting. I will call you back now. Okay.
Okay. Can you please guys mute yourself if you are talking to others? Clear? So global scope means inside window object it will be created, and the global scope means it will be accessible to all other programming functions and scope. We can access from any local scopes. Then another scope is, you can see the definition, any variable that is not inside any function or block scope. Block scope मतलब pair of curly braces inside the global scope. जो कोई specific local scope के अंदर नहीं है तो वो क्या है, global object के अंदर, global scope के अंदर होता है. And the global scope can be accessed from anywhere in the program. आप कहीं पे भी वेब पेज के अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग कोई भी मॉड्यूल के अंदर से एक्सेस कर सकते हो. अब लोकल स्कोप और फंक्शन स्कोप भी बोलते हैं. लोकल स्कोप क्या है? वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन are inside this local scope. You can accessible, it can be accessible inside that function only. Okay, so they are only accessed from that function, or means that cannot be accessed outside this function. इसमें क्या होता है कि कोई फंक्शनल, इसको फंक्शनल स्कोप भी बोलते हैं. जब ये फंक्शन में यहाँ पे डिफाइन किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये फंक्शन यहाँ पर मैंने डिफाइन किया ग्रीट and greet. I am calling this function greet function over here, and I want to access this outside this function greet. So is it accessible? No, because I have defined it inside this function body. Means the greetings variables scope is inside, limited inside this functional scope, greet functions scope. Clear? I cannot access it outside this function. सो इसको मैं रन करके देखते हैं अपने क्या आउटपुट मिलता है अपने को. लुक एट इट, ग्रीटिंग इज नॉट डिफाइंड. व्हाई इट इज? ये ग्रीटिंग्स प्रिंट हो रहा है यहाँ पर console.log. इसको मैं बंद कर देता हूँ, मुझे खाली एरर दिखाई देता है. कौन सी लाइन में? लाइन नंबर 8. मीन्स यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि ग्रीटिंग्स अनडिफाइंड, डिफाइंड नहीं है. क्यों? Because it is defined inside the greeting function, sorry, greet function, right? And if I want to print over here, I just comment the line number 8 and want to show it from the functions. I am printing the console from the functions body, then it will work. Hello world, right? So what does it mean? So it will work because it is the scope of greeting is local. Then you can access it inside this function, not outside this function. So it is called local or functional scope. Another type of function, another type of scope is there, which is called block scope. So it is not related to function or global. Functional scope is called local scope or functional scope. It is called block scope. Block scope means it is not necessarily inside a function or global. सो ये किसके अंदर है? कोई भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं ऐसे रखूंगा तो उसका स्कोप भी लिमिटेड हो जाएगा. तो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको लेट एंड कॉन्स्ट और बार के अंदर. जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन किया, ये एक ब्लॉक स्कोप, राइट? कोई भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं रख सकता हूँ बंच ऑफ कोड को. ये 6 सपोर्ट करता है, इसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप. एंड ब्लॉक स्कोप के अंदर मैंने क्या किया यहाँ पे कि लेट ग्रीटिंग्स करके एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया एंड डिक्लेयर किया एंड इनिशियलाइज किया. var लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश. बट ये जो लैंग्वेज लैंग करके वेरिएबल है, आई जस्ट डिक्लेयर इट यूजिंग var. ऊपर वाला लेट में डिक्लेयर किया, नीचे वाला var में यूज किया, var कीवर्ड यूज करके डिक्लेयर किया. एंड आई एम एक्सेसिंग द ग्रीटिंग्स इनसाइड इट, right? And I am also accessing language outside the scope, and I'm accessing the greetings again outside the scope. So let's see what is the output, then I will explain. So hello world, it print hello world and English, but greetings is not defined in line number 9. What is? We cannot access greetings. Why? Let me explain. So let जो है ना, let and const, they support block scope. What does it mean?
they supports block scope means if you declare any variable inside using let or const, you cannot access it outside this block scope. Clear? But if you define a variable using var does not support block scope. ये क्या करता है, ये block scope के अंदर रखोगे तो भी ये ऑटोमेटिकली ग्लोबल हो जाता है. var does not support block scope but it supports functional scope. Remember, function के अंदर define करते तो वो support करता है, but let ब्लॉक स्कोप भी सपोर्ट करता है, फंक्शनल स्कोप भी सपोर्ट करता है. आप फंक्शन के अंदर लिखोगे तो भी उसका स्कोप उसके अंदर लिमिट रहता है, एंड बार करके लिखते हो तो भी इसका भी स्कोप फंक्शन के अंदर लिमिटेड रहता है. बट इनके सब ब्लॉक स्कोप मतलब कोई फंक्शन या कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. यू कैन embed this inside any curly braces, might be inside if conditional block or might be inside for loop or simple curly braces. ये तीनों को ब्लॉक स्कोप भी बोलते हैं, राइट? तो ये ब्लॉक स्कोप लेट एंड कंस क्या करता है, ब्लॉक स्कोप सपोर्ट करता है. मींस ये इसके स्कोप के अंदर ही रह सकता है बट वार नहीं रहेगा. वार खाली फंक्शनल स्कोप सपोर्ट करता है. मींस फंक्शन के अंदर जो वार वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यूजिंग वार, देन वो उसका वो सपोर्ट करता है. मींस वो एक्सेस आउटसाइड दिस फंक्शन नहीं हो सकता है. बट इन केस ऑफ ब्लॉक स्कोप वेरिएबल डज नॉट सपोर्ट, मींस ये ऑटोमेटिकली ग्लोबल हो जाता है, ये फंक्शनल स्कोप के अंदर नहीं रहता. तो यू कैन एक्सेस इट आउटसाइड दिस ब्लॉक ऑल्सो. सो मैंने लैंग्वेज को मैं ट्राई किया यहाँ पे एक्सेस करने के लिए आउटसाइड दिस ब्लॉक, देन आई कैन एक्सेस इट बिकॉज वेरिएबल डज नॉट सपोर्ट ब्लॉक स्कोप. रिमेंबर, बट लेट एंड कॉन्स्ट सपोर्ट ब्लॉक स्कोप. जो ब्लॉक के अंदर रखा हो उसी ब्लॉक के अंदर उसका स्कोप लिमिटेड है. यू कैन नॉट एक्सेस आउटसाइड दिस ब्लॉक. दैट्स व्हाई when I am trying to access greetings outside this block, it will throw an error that it is not defined. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear? तो ये क्या होता है, ये ग्लोबल हो गया क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता. आपको क्या सपोर्ट नहीं करता, लोकल स्कोप, ब्लॉक स्कोप सपोर्ट नहीं करता. ब्लॉक स्कोप एंड फंक्शनल स्कोप भी स्पेसिफिक है. फंक्शनल स्कोप और लोकल स्कोप किसको बोलते हैं, जब फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखते हैं ना उसको फंक्शनल स्कोप बोलते हैं. ये सपोज यहाँ पे मैं खाली कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखता हूँ, या मैंने यहाँ पे इफ बताया नहीं, इफ ब्लॉक के अंदर लिखा, और माइट भी फॉर लूप के अंदर कोई फॉर की जो बॉडी चालू होता है ना कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर लिखा, तो इसको ब्लॉक स्कोप बोलते हैं. या मैं विदाउट कुछ भी लिखे बगैर भी ऐसे ब्लॉक स्कोप लिख सकता हूँ. क्लियर? कोई कर्ली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज होता है तो उसको पर्टिकुलर ब्लॉक समझते हैं और उसको ब्लॉक स्कोप बोलते हैं. सो अभी तो कोई डाउट है, var let and cost how they support block scope और var how it does not support block scope? ये समझ में आ गया? Yes, sir. but let and var and const ये तीनों के तीनों फंक्शनल स्कोप सपोर्ट करता है. तो कोई फंक्शन की बॉडी के अंदर रखोगे तो वो बाहर कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then nested scope. ये क्या होता है? Just like functional scope in JavaScript, a scope can be nested inside another scope. जैसे, let me give you an example. Nested का मतलब क्या है? ग्लोबल के अंदर, लोकल के अंदर और एक लोकल. तो ये कहाँ पे है? ये ग्लोबल स्कोप में है. मेरा हाईलाइट एरिया दिख रहा है तुम लोगों को? नेम इक्वल टू पीटर लिखा हुआ है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट? Yes, sir. ओके. माय नेम इक्वल टू पीटर एंड ये कहाँ पे? ग्लोबल स्कोप में है. ये कहाँ पर है? ये फंक्शन जो डिफाइन किया ये ग्लोबल स्कोप में है. बट ये जो लेट ग्रीटिंग्स लिखा हुआ ये किसके स्कोप में है? फंक्शनल स्कोप. फंक्शनल स्कोप में. बट फंक्शनल स्कोप के अंदर और एक ब्लॉक बनाया मैंने जो लेट लैंग्वेज है. ये किसके अंदर है? ये ब्लॉक स्कोप के अंदर है. तो ये दोनों स्कोप के अंदर है इंसर्ट. ये फंक्शनल स्कोप के अंदर भी है और ब्लॉक स्कोप के अंदर भी है, राइट? तो ये जो लेट लैंग लिखा हुआ है ये ब्लॉक स्कोप सपोर्ट करता है. तो ये ब्लॉक के बाहर में एक्सेस कर नहीं सकता. जैसे मैं यहाँ पे लिखने की ट्राई करूंगा, लेट मी कमेंट दिस, एंड ये ब्लॉक के बाहर मैंने लैंग्वेज को एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ.
राइट, console.log, यहाँ पे क्या करूंगा, lang ट्राई करूंगा, इट विल वर्क और नॉट, ये काम करेगा कि नहीं करेगा? जब ये फंक्शन कॉल करूंगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, तो ये काम करेगा, इट विल प्रिंट, No, no, sir. No, sir. No. it will not work because let language does not support support block scope, so block के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते इसको, राइट, बट मैं ग्रीटिंग्स को एक्सेस कर सकता हूँ लाइक दिस, यहाँ पे ग्रीटिंग्स करूँगा क्योंकि ग्रीटिंग्स फंक्शनल स्कोप के अंदर और मैं ये भी लिख रहा हूँ फंक्शनल स्कोप के अंदर, क्लियर? तो इट विल वर्क, ये फंक्शनल स्कोप यहाँ से चालू होता है, यहाँ खत्म होता है क्या, तो इसके अंदर लिखा तो ये काम करेगा, बट मैं इसको बाहर लिखूंगा तो ये काम नहीं करेगा, ये फंक्शन के बाहर लिखूंगा तो इट विल अगेन थ्रो एन एरर बिकॉज ग्रीटिंग्स हैज फंक्शनल स्कोप एंड आई हैव आल्सो डिफाइन इट यूजिंग लेट, तो ये स्ट्रिक्टली वो फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं हो सकता, तो मैं जब ये एक्सेस करने की ट्राई करूंगा आई कैन नॉट एक्सेस इट, ग्रीटिंग्स इज नॉट डिफाइंड, क्लियर? बट मैं यहाँ पे एक्सेस करने की क्या यह बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट योर, लुक एट इट, I am accessing language which is inside block scope, also greetings which is inside functional scope, right, and my name which is in global scope. So मैं जब inner सबसे अंदर जो scope है, it can access its own scope, means जो block scope which is inside functional scope, also global scope, ये तीनों को यहाँ पे एक्सेस कर सकता है, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा, तीन स्कोप मैंने डिफाइन किया, तो सबसे पहले कौन सा था, ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल, इसके अंदर फंक्शनल स्कोप, फंक्शनल स्कोप, फिर इसके अंदर क्या था, ब्लॉक स्कोप, Block. राइट, तो मैं ब्लॉक स्कोप के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ हूँ आई कैन एक्सेस, सो ब्लॉक स्कोप के अंदर कुछ भी एक्सेस करना चाहता हूँ, हुई चीज फंक्शनल स्कोप के अंदर मैं एक्सेस कर सकता हूँ और ग्लोबल के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, क्लियर? क्लियर ना? बट मैं ब्लॉक स्कोप के अंदर जो है वो फंक्शनल स्कोप के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, या फंक्शनल या ब्लॉक स्कोप के अंदर जो है इसको ग्लोबल के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, क्लियर? जो पेरेंट में है, जो चाइल्ड के अंदर के अंदर जो स्कोप है इसके अंदर, या इसके अंदर और एक मैं स्कोप डिफाइन करूंगा ऐसे, फंक्शनल स्कोप, सॉरी ब्लॉक स्कोप, राइट, तो फिर ये बाहर की ब्लॉक स्कोप के अंदर जो लिखा हो वो एक्सेस नहीं कर सकता, बट बाहर वाले का जो भी वेरिएबल है वो मैं अंदर वाले एक्सेस स्कोप में एक्सेस कर सकता हूँ, सो इट इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ स्कोप, ये नेस्ट किया मैंने, नेस्टिंग किया, ग्लोबल उसके अंदर फंक्शनल, उसके अंदर ब्लॉक स्कोप, उसके अंदर और एक ब्लॉक या और एक फंक्शन भी डाल सकता हूँ, राइट, ऐसे स्कोप अंदर जा सकता है, इसके अंदर भी एक डाल सकता हूँ, जैसे अभी डाला मैंने, और एक ब्लॉक डाला मैंने, फिर इसके अंदर और एक फंक्शन भी डिफाइन कर सकता, राइट, ऐसे मैं अंदर स्कोप ले सकता हूँ, तो ये नेस्टेड है, तो जो सबसे नीचे है स्कोप वो बाहर का जितने सभी वेरिएबल मैं एक्सेस कर सकता हूँ, बट नीचे वाले ऊपर वाले स्कोप में नीचे वाले का स्कोप एक्सेस नहीं कर सकते, इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं समझ में आया? हेलो, Yes, sir. एक बार Can you- ये नेस्टिंग सर एक बार फिर से, सर ये रिपीट कर दीजिए एक बार। ओके, तो मैं यहाँ पे एक डिफाइन और एक कर देता हूँ, पहले वो जो पहले था ना उसको डिफाइन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है, ये जो डिफाइन किया वो ये कहाँ पे है, ग्लोबल स्कोप में है, इसके अंदर ये फंक्शन भी ग्लोबल स्कोप में ही है, राइट,
बट फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है ये ग्रीटिंग्स, ये किसके अंदर है? फंक्शनल स्कोप के अंदर। तो ग्लोबल स्कोप के अंदर ये फंक्शनल स्कोप है। फिर फंक्शनल स्कोप के अंदर ये फंक्शनल स्कोप कहाँ से कहाँ तक है? ये जो कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक है, राइट। बट इसके अंदर और एक ब्लॉक स्कोप डिफाइन किया जो फंक्शन के अंदर है। क्लियर? तो सबसे ऊपर ग्लोबल स्कोप है, फिर इसके अंदर ये जो कर्ली ब्रेसेस देख रहे हो ये फंक्शन बॉडी है, ये फंक्शनल स्कोप है। इसके अंदर और एक स्कोप है जिसका नाम है ब्लॉक स्कोप है, जो ब्लॉक स्कोप है। तो ये सबसे बाहर का स्कोप कौन सा है? ग्लोबल स्कोप, उसके अंदर फंक्शनल स्कोप, उसके अंदर ब्लॉक स्कोप, राइट। तो जो सबसे अंदर वाला स्कोप है, जो सबसे अंदर वाला स्कोप है, वहां से तुम बाहर वाले का स्कोप एक्सेस कर सकते हो। बाहर वाला स्कोप मतलब जो फंक्शन के अंदर, ये देखो ये जो स्कोप है इसके बाहर ये लेट लिखा हुआ है, राइट। लेट ग्रीटिंग्स इसके बाहर लिखा हुआ है, तो ये उसका पेरेंट स्कोप में है, फंक्शनल स्कोप के अंदर है, राइट। तो ये ब्लॉक स्कोप के अंदर मैं ग्रीटिंग्स को एक्सेस कर सकता हूँ, बट ये लैंग्वेज ब्लॉक स्कोप के अंदर मैं फंक्शन के अंदर, फंक्शनल स्कोप के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक्सेस करने जाऊंगा console.log language, I cannot access it, right? अभी क्लियर हुआ? Yes, sir. देखो Yes. अभी लैंग्वेज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 8। क्यों? क्योंकि ये अंदर की स्कोप में, ये बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, बट बाहर जो लिखा हुआ है उसको मैं अंदर यहाँ पे एक्सेस हो सकता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो फंक्शनल का नेस्टिंग किसको बोलते हैं? ना पेरेंट, इसके बाद फिर चाइल्ड, इसके बाद अंदर फिर चाइल्ड, इसके अंदर फिर चाइल्ड। जो सबसे अंदर वाले चाइल्ड है वो बाहर वाले जितने सारे पेरेंट है उसका स्कोप में जो भी वेरिएबल है उसको एक्सेस कर सकता है, बट चाइल्ड में जो है वो पेरेंट में एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें फिर वो कंसेप्ट भी अप्लाई होता है जो लेट कौन सी स्कोप सपोर्ट करता है ना, फंक्शनल स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप दोनों, राइट। बट बार ओनली फंक्शनल स्कोप सपोर्ट करता है, ये स्कोप सपोर्ट नहीं करता है। सपोज मैं इसको बाहर कर दूं तो क्या होगा? तो क्या होगा? आई कैन एक्सेस हियर एज वेल, राइट। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल, ये ब्लॉक स्कोप सपोर्ट नहीं करता मतलब ये ब्लॉक के अंदर लिमिटेड नहीं रहेगा उसका स्कोप। बाहर लिखूंगा ना तो ब्लॉक के अंदर लिमिटेड नहीं रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट ग्लोबल के अंदर उसके पेरेंट में चला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक्सेसिबल Yes, हो sir. जाएगा वो, देखो अभी एक्सेसिबल है, लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश दिख रहा है लाइन नंबर 8 से, दिख रहा है ना लाइन नंबर 8। बिकॉज बाहर करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे फिर वैल्यू असाइन करोगे तो वो ब्लॉक स्कोप के अंदर लिमिटेड नहीं रहेगा, वो बाहर चला जाएगा। वो उसको समझ में नहीं आता कि ये ब्लॉक स्कोप है क्या। बट फंक्शन के अंदर ऑफकोर्स इट विल बी देयर। फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की ट्राई करोगे, यहाँ पर ये लैंग को समझ में बाहर लिखा, बट वो फंक्शन के अंदर है, राइट। बट मैं यहाँ बाहर एक्सेस करने की ट्राई करूंगा फंक्शन के बाहर, तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, लैंग्वेज नॉट ए फंक्शन। बिकॉज फंक्शनल स्कोप सपोर्ट करता है बाहर। इसके ऊपर बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है जो स्कोप के ऊपर, राइट। क्लियर? Yes, sir. अभी और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिखा है वहां पे बार या लेट या कॉन्स कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया कभी कभी, तो ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। जब स्ट्रिक्ट मोड नहीं है ना तो ये सपोर्ट करेगा, कोई एरर नहीं देगा। तो इसमें क्या होता है, ये कोई भी कुछ भी नहीं लिखेंगे ना तो ये एरर नहीं दिखेगा नॉर्मल मोड में, बट इसका स्कोप क्या होता है, ग्लोबल हो जाता है, विंडोज के ऊपर चला जाता है बाय डिफॉल्ट। किसी के अंदर भी रखो तुम, फंक्शन के अंदर रखो या अंदर अंदर जहां पे भी रखना रखो, बट ये ग्लोबल हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी लैंग्वेज एक्सेस करने की ट्राई करूंगा, अच्छा ये सपोर्ट नहीं करता क्या?
कंट्रोल एक्स फंक्शन के अंदर रखता हूँ। अच्छा, बाय डिफॉल्ट शायद स्ट्रिक्ट मोड सपोर्ट करता होगा, स्ट्रिक्ट मोड बाय डिफॉल्ट चल रहा होगा, इसलिए सब सपोर्ट नहीं करता। बट कभी कभी आप ऐसे डिफाइन करोगे, देन यू कैन इजीली एक्सेस इट आउटसाइड। ये ग्लोबल हो ही जाता है, राइट? बट ये कभी भी ऐसे छोड़ोगे नहीं। ये क्या करेगा, ये जैसे आप डिक्लेयर तो कर ही लिए, राइट? बट यहाँ पे मैं सपोज एक सिंटेक्स आता है यूज स्ट्रिक्ट करके, ये स्ट्रिक्ट मोड में चलता है। यहाँ पे क्या करे, एरर ही दिखा देगा, लैंग्वेज नॉट डिफाइंड। ये तो लाइन नंबर 11 में ये एरर दिखा देगा। जब डिक्लेयर करोगे ना तब भी एरर दिखा देगा, आपको सपोर्ट नहीं करने देगा। इस तरीके से कभी भी डिफाइन करोगे आप तो ये क्या करेगा, मिसबिहेव करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसका स्कोप कभी कभी पूरा ग्लोबल हो जाता है, किसी के अंदर रेस्ट्रिक्ट रहता है, नहीं भी रहता है, आप उसका रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है? सो इट इज बैड प्रैक्टिस टू डिफाइनिंग एनी वेरिएबल विदाउट एनी कीवर्ड्स, लेट, कॉन्स्ट और var। तो ये कभी मत करना। ये एरर नहीं दिखाता है, बट वो एरर दिखाएगा। अभी यहाँ पे नहीं दिखाता क्योंकि हम ऑलरेडी डिफाइन कर दिया और ये स्टोर हो गया। बट कभी कभी आपको ये अलाउ करता है डिफाइन करने के लिए। देखो अभी क्या दिखा है, यूज लैंग्वेज नॉट, लाइन नंबर 5। ये क्या किया, ये लाइन नंबर 5 में जो ये डिफाइन किया, ये यूज स्ट्रिक्ट मोड किया तो एरर दिखा दिया तुमको, है ना? बट ये यूज स्ट्रिक्ट निकाल दूंगा मैं, सॉरी, यूज स्ट्रिक्ट यहां से निकाल दूंगा या कमेंट कर दूंगा, तो इट विल नॉट थ्रो एन एरर। आप देख सकते हो, ये मैं एक्सेस कर सकता हूँ कहीं पे भी, दिख रहा है? ये बाहर में एक्सेस कर सकता हूँ। इस अगर इधर ये डिफाइन भी कर सकता हूँ, बाहर एक्सेस भी कर पाना चाहिए, मैंने नहीं करने दे रहा है। तो ये बैड प्रैक्टिस है। जब तुम मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट लिखोगे या मॉड्यूल के अंदर लिखोगे तो ये एरर थ्रो करेगा आपको, जैसे मैंने अभी थ्रो करवाया आपको। जब यूज स्ट्रिक्ट चालू करा, मैंने एनेबल कर दिया, आपको यहीं से एरर दे देगा लाइन नंबर 5 में पहले से, दिख रहा है? यहाँ पे आपको इनिशियलाइज करने ही नहीं देगा, बोला इस तरीके से हम तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो। मैं उसको समझ में नहीं आ रहा जावास्क्रिप्ट को, व्हाट इज दिस, राइट? सो ऑलवेज यूज लेट, कॉन्स्ट और var, रिमेंबर। क्योंकि जब नॉर्मल मोड में जावास्क्रिप्ट लिख रहे होंगे तो इसका स्कोप गड़बड़ हो सकता है, रिमेंबर। क्लियर? Yes, sir. ओके। Clear? So for now, this much. From tomorrow, we'll learn something more about hoisting, lexical scope, scope chain, and hoisting is most important. Again, clear? So I have another call. Yes, I sir. have to leave. So let's meet tomorrow. One more thing. I have assigns 6 people, those who are going to help you, might be today or by from tomorrow. Any question you can ask to them. I will add them in WhatsApp group and let you know the name. Clear?